Length of perpendicular drawn from point x1, y1 to the line ax plus by plus equal to 0 is, क्या करोगे, एक पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज करोगे. यूज दिस पॉइंट ऑन योर लाइन मीन्स योर x की जगह x1 आएगा, y की जगह y1 आएगा. ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square, मतलब x coefficient square plus y coefficient square. For an example, find length of perpendicular drawn from point 1, -2 to the line 3x plus 4y minus 23 equal to 0. Okay. From this point, you have to draw perpendicular from this point to the line. तो क्या करोगे, आंसर क्या होगा? इस पॉइंट को सीधा लाइन के ऊपर यूज करो, मतलब 3 into 1 plus 4 into -2 minus 23 upon under root 3 square, x coefficient square plus y coefficient square. ये +3 -8 -23, तो -28 अपॉन ये आपका 25 का रूट होगा. तो मॉडुलस, इसका मॉडुलस है, तो आंसर हो जाएगा 28/5. ये इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन. ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. नेक्स्ट वन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. Suppose this is the line L. आपका L is the ax plus by. Equation of line, let us take ax plus by plus equal to 0. Let us take this is the point x1, y1. यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए,
drawn one perpendicular from point x1 comma y1 to the given line. So how to find out this perpendicular? Let put a perpendicular is a point. Let us take alpha comma beta. This one given, this one given. How to find out alpha comma beta? If alpha comma beta with a put of perpendicular drawn from point x1 comma y1 to the line x plus by plus c equal to 0, then there is a formula to find out alpha and beta. Alpha minus x1 upon a is equal to beta minus y1 upon b is equal to minus of a पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज करो a x1 प्लस b y1 प्लस c a प्लस b स्क्वायर. इसमें जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है बट स्क्वायर रूट नहीं है. और इसमें मॉडुलस नहीं है. ऐसे for an example, find put a perpendicular drawn from point let us take 6 comma 9 to the line 3x minus 7y plus 10 equal to 0. Okay. तो ये करेंगे. This is your x1 y1. आपका x1 6 y1 9 a is equal to 3 b equal to minus 7 and c equal to 10. ये सब आपको दिया गया. आपको अल्फा एंड बीटा निकालना है. तो अल्फा माइनस x1 upon a, I am using this formula. Okay. Use this formula. तो अल्फा माइनस x1 मतलब 6 upon a 3 is equal to beta minus y1 upon b is equal to minus of a पॉइंट को सीधा इसके ऊपर डालो. कितना आ रहा है 3 into 6 minus 7 into 9 plus 10 upon a square plus b square 3 square plus minus 7 का स्क्वायर. तो प्लस 7 स्क्वायर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं.
That implies alpha minus 6 by 3 is equal to beta minus 9 by minus 7 is equal to आपका 18, ये आपका प्लस 28 माइनस 63, तो 35 माइनस 35 माइनस प्लस 35 हो गया अपॉन 9 प्लस 49 58। तो ये जो राइट साइड पार्ट आपका पूरा नॉन हो जाएगा, राइट साइड part become known. ठीक है, if you equate these two you'll get your alpha value. If you equate these two that implies alpha minus 6 हो जाएगा 3 into 35 मतलब 105 अपॉन 58, तो अल्फा हो जाएगा 105 अपॉन 58 प्लस 6, तो ये 348 453 अपॉन 58, ये आपका एक्स अल्फा। नाउ इक्वेट दिस टू, ये दोनों को इक्वेट करो, बीटा बीटा माइनस 9 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 35 बाई 58, दैट इम्प्लाइज बीटा माइनस 9 हो जाएगा 35 इंटू 7, 35 इंटू 7 कितना 35 21 minus 245 minus 245 upon 58, that implies beta equal to minus 245 upon 58 plus 9, 580 minus 58 522 minus 245 upon 58. Am I correct? टू 77 upon 58, तो जो अल्फा बीटा मैंने से रैंडमली क्वेश्चन दे दिया था, तो पॉइंट जो रहेगा you'll get 453 upon 58, 277 upon 58. अच्छा, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इमेज ऑन द लाइन आल्सो बोलते हैं इसको। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इट इज कॉल्ड इमेज ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर इमेज है, जस्ट राइट डाउन।
Done. Yes, sir. One more thing is the, ये हम निकाले फोटो परपेंडिकुलर. अनदर थिंग इज द इमेज. ये P का इमेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन तो नीचे आ जाएगा. ओके. और उतना डिस्टेंस वो नीचे आ जाएगा. तो इमेज ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन. Image with respect to a image of point P with respect to a line. तो इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे. उतना डिस्टेंस एक्सटेंड करेंगे. ये आपका ये इमेज होगा. तो फोटो परपेंडिकुलर और इमेज में क्या डिफरेंस रहा? मतलब ये दोनों में if alpha comma beta with the image of point x1 comma y1 with respect to line ax plus by plus equal to 0, देन आपका जो प्रीवियस फॉर्मूला रहेगा वही फॉर्मूला होगा.
लेकिन वो डिस्टेंस डबल कवर कर रहा है, नीचे की तरफ डबल कवर कर रहा है। फॉर्मूला रिमेन्स सेम। बस ये जो -1 के जगह -2 हो जाएगा, दैट्स इट। अल्फा माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 इंटू, आप पॉइंट को लाइन के ऊपर डाल दो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस ये जितना डिस्टेंस होगा pm डैश m डैश m भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तो इसलिए वो डबल हो गया। बाकी सब कुछ, तो ये जो क्वेश्चन था ये 35 की जगह 70 होगा, बस आपको निकालना है। समझाइए? सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग सेम। उधर -1 था, -1 इंटू दिस थिंग, ये -2 हो जाएगा, और कुछ नहीं। राइट।
Okay, find out this.
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो भी आंसर है वही अकेला कर रहा है, बाकी सब
Length of perpendicular drawn from 4 comma minus 3 to the line. To this line ये सीधा 4,3 लाइन के ऊपर यूज करो तो कितना होगा 15 into 4 60 minus 3 into 8 minus 24 minus 12 upon 15 square plus 8 square का रूट ओवर इसका मॉडुलस तो ये हो गया 24 अपॉन ये 17 तो 24/17 ये कहाँ से आया 13/5 कहाँ से आया length of perpendicular from the point 4 comma minus 3 to the line 15x plus 8y minus 12 equal to 0 4 comma minus 3 को लाइन के ऊपर डालोगे यूज करोगे तो 15 x के जगह 4 8 y के जगह -3 -12 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर तो ये आपको 60 दे रहा है ये -24 -12 सॉरी नॉट 20 हाँ 36 24 तो 24 अपॉन 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट ओवर 17 होता है तो 24/17 इज द आंसर find image on the line this is the line of the point 3 comma minus 3 ये आपका 3 comma minus 3 point is there and this is the line 2x plus y minus 8 equal to 0 यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए लेटेस्ट टेक फुट ऑफ परपेंडिकुलर विद अल्फा कॉमा बीटा देन alpha minus x1 x1 is the 3 upon a is the 2 is equal to beta minus y1 y1 is the -3 upon b b is the 1 is equal to minus of ये पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज करो तो 2 into 3 प्लस वाई मतलब -3 -8 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 that implies alpha minus 3/2 is equal to beta plus 3/1 ये आपका +5 होगा 11 minus 6 -5 minus +5 अपॉन 5 तो ये कैंसिल होके आपको 1 दे दिया अब इसके साथ इक्वेट करोगे दैट इम्प्लाइज अल्फा माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज अल्फा हो जाएगा 5 अगेन बीटा प्लस 3/2 ये भी 1 हो गया तो 2 - 3 बीटा हो जाएगा -1 तो आपको 7 कैसे आया ये भी गलत है इसका आंसर मिला 24/17 इसका आंसर हुआ 5 -1 अच्छा मैंने गलत लाइन ले लिया क्या एक मिनट सॉरी आई थिंक मैंने थर्ड लाइन को यूज कर लिया ओके
फर्स्ट वन ऐसा नहीं हुआ है ना? नहीं, फर्स्ट वन बराबर है, सेकंड में आई एम रॉन्ग हियर। सेकंड क्वेश्चन था 2x + y - 8 लाइन। नहीं, लाइन तो बराबर रखा, 2x + y - 8 2x + y - 8 नहीं, -3/2 = बीटा + 3/1 = ये आपका +5 +5 तो 1 हो गया बराबर। तो अल्फा इज द 1, सॉरी अल्फा 5 - 1। देखो मैंने ये 0.5 -1 बोल रहा हूँ ना, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, गलत है, कर नहीं रहा है। 5 ये हो गया 10 -1 - 8 समथिंग अराउंड। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है चेक करो ना। सर वो पॉइंट बीटा +3/2 ले लिया। किस टू लिया आपने लिया? नहीं, मेरा भी मिस्टेक है क्योंकि पॉइंट इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 5,1 सॉरी 5,-1 इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए ये लाइन के ऊपर, क्योंकि दिस इज द पॉइंट, तो मेरा कहीं पे भी मिस्टेक है। पॉइंट हमें रखे थे 3, -3 अल्फा -x1/a is the 2 b = 1 बीटा -y1/b = -2 × 3 -3 -8, ये कितना हुआ? -5 ना, -5 ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, तो 2 + 3 5 होगा। सॉरी सॉरी, ये 1 - 3 -2, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यस, बीटा +3/1, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो ये जो पॉइंट होगा -2 नॉट -1। तो 5, -2 इज योर आंसर। देखो 5, -2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो आपका आंसर करेक्ट कि नहीं आप खुद चेक कर सकते हो। Then find image of the point 2, -6. Third one. तो फॉर्मूला वही रखेंगे, अल्फा -2/3 is equal to बीटा -6/8 इक्वल टू -2 इंटू, ये पॉइंट को ये लाइन के ऊपर डालो, 3 × 2 + 8 × -6 -10/3² + 8², 9 + 6 4 okay, implies alpha -2/3 is
equal to beta plus 6 upon 8 minus 2, ये आपका कितना आ गया -58 प्लस 6 -52 इंटू 2 104 प्लस में होगा अपॉन 73। तो ये दोनों को इक्वेट करोगे अल्फा कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 104 अपॉन 73। तो ये 146 प्लस 312 अपॉन 73 458 upon 73, that is the x, ये करेक्ट है। नाउ फाइंड आउट बीटा वैल्यू, आपका बीटा प्लस 6, बीटा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 104 अपॉन 73 माइनस 6 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा 832 माइनस 438 अपॉन 73, तो 4 12 9 394 अपॉन 73 बराबर है, यस थर्ड वन करेक्ट। तो इमेज पॉइंट क्या होगा, image point will be 458 upon 73 comma 394 upon 73, fourth one, find area of an equilateral triangle whose base is the x plus y is equal to 2 and vertex is the 2 comma minus 1. Let this is an equilateral triangle. Base given x plus y is equal to 2 and 2 comma minus 1 is the is this 2 comma minus 1, yes. तो एक ट्रायंगल मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे, how to find out area of triangle, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, from vertex draw perpendicular to the base, ठीक है। This is the height, height कितना हो जाएगा, ये पॉइंट को सीधा लाइन के ऊपर डालो, आपका लाइन क्या है, आपका लाइन होगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यही फॉर्मेट में आपको रखना पड़ेगा, तो 2 का माइनस 1 इसमें डाल दो, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर ए, तो हाइट बिकेम 1 बाय रूट 2, मुझे एरिया चाहिए। Already you know h is equal to root 3 by 2a, that implies a हो जाएगा 2h by root 3, a is the length of side which is 2 by root 3 into 1 by root 2, that is 2 by 3 का root over, this is a। एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल root 3 by 4 a square which is the root 3 by 4 a square is the 2 by 3 which is
1/2 √3 स्क्वायर यूनिट्स में रेशनलाइज करोगे तो मतलब √3/6 भी लिख सकते हो। Yes. Find distance of point 2,3 from the line 2x minus 3y plus 9 equal to 0 measured along x minus y equal to 0. Find distance of point 2,3 from this line 2x minus 3y plus 9 equal to 0 measured along this line. ये line के हिसाब से इसके पहले क्या होगा equals to 3g है। अच्छा 2,3 लाइन की स्पेसिफाई कर जा आसान हो गया। सपोज ये लाइन में सेटिस्फाई नहीं होता सपोज ये पॉइंट लाइन में सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा और एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा which is parallel to this line। ये लाइन के साथ पैरेलल करके आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, वही डायरेक्शन में आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन, बट लकीली पॉइंट भी लाइन के ऊपर है। 2,3 पॉइंट ऑन द लाइन गिवन लाइन, तो आपको एक्स्ट्रा लाइन का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ये लाइन के हिसाब से ये लाइन along this line आपका डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन along this line मेजर आप इसी हिसाब से मेजर करोगे, नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सीधा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, जस्ट फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, 2x माइनस 3y प्लस 1, तो मैं मैट्रिक्स मेथड यूज कर रहा हूँ, आप मैट्रिक्स मेथड यूज करो, इक्वेशन यूज करो। -9 प्लस 3 -3 प्लस if you use 6 then y equal to 7। तो दिस इज द पॉइंट 6 अब पी क्यू का डिस्टेंस चाहिए, so length of PQ is the 6 minus 2 square 7 minus 3 whole square this is 16
4 root with the right answer और मेरा सही एरिया पूछेगा तो स्क्वायर यूनिट्स, लेंथ पूछेगा बाकी नहीं हो रहा है। If P and Q are the length of perpendicular drawn from origin to the line, length of perpendicular drawn from origin to the line x plus vi plus equal to 0 क्या होगा? क्या होगा? Perpendicular length from origin to the line x plus bi plus equal to 0 is what? हम जब ओरिजिन 0,0 इसको सेटिस्फाई मतलब इसके ऊपर डालेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, सिर्फ c बचेगा, तो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Now come to sixth one. P the length of perpendicular from origin to this line. Line given x alpha plus y cosec alpha is equal to a. तो P क्या हो जाएगा? ओरिजिन से ए लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, a अपॉन अंडर रूट, क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएगा, माइनस ए लिखो कि प्लस लिखो, बट हम मॉडुलस दे रहे, कोई ये नहीं, a अपॉन आपका सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप सेक एंड कोसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, देन यू विल गेट a अपॉन बाय स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इसका रूट ओवर, व्हिच इज a अपॉन आपका साइन स्क्वायर अल्फा दिया जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, व्हिच इज ये आपका 1 हो गया, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट ओवर, दैट इज 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो यू गेट a साइन अल्फा कॉस अल्फा इसका मैग्नीट्यूड, बट मुझे p स्क्वायर चाहिए, तो p स्क्वायर हो जाएगा a साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर। Now come to second line given x cos alpha minus y sin alpha
is equal to a cos 2 alpha. क्यू डिस्टेंस, क्यू क्या होगा, ओरिजिन जब डालेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, ये लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. ओके, ये आपका लाइन 2, ये आपका लाइन 1. तो क्यू क्या होगा, ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ होगा a cos 2 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इसका, और ये आपको 1 दे दिया. तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 अल्फा. क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4p स्क्वायर प्लस q which is 4a square into 4 sin square alpha cos square alpha, इसमें मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, प्लस a square cos square 2 alpha which is a square कॉमन, आपका 4 sin square alpha cos square alpha that is 2 sin alpha cos alpha का होल स्क्वायर which is sin square 2 alpha plus cos square 2 alpha, ये आपको 1 दे दिया. हो गया a square into 1, ये आपका आंसर. Right on. बहुत easy है. सेवेंथ वन नहीं मिला. Value of t, these three lines are concurrent. Also find point of concurrency. तो कंकरेंट का कंसेप्ट क्या था, तीनों लाइन एक पॉइंट पर पास करना चाहिए. आप डिटरमिनेंट यूज करो, नहीं तो दो दो गिवन लाइन है, नॉन लाइन है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो. वही पॉइंट
आपका फर्स्ट लाइन क्या है? तो 2x plus y minus 4 equal to 0. This is the line x minus y plus 1 equal to 0. सिंपल है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये इजी हो रहा है क्योंकि इफ यू एडेड दिस टू y इजीली कैंसिल हो रहा है। इफ यू टेक दैट सम, ये दोनों का आप ये दोनों को ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाता है। तो 3x minus 3 equal to 0, then x equal to 1। x का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। 1,2 ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो। वन कमा टू आपका लाइन, ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 minus 2 plus 1 equal 0, 2 plus 2 minus 4 also 0। तो 1,2 also थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल गया। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो होता है ये 1,2 आ गया। Now 1,2 will satisfy the line px minus 3y plus 8 equal to 0। 1,2 डालो, x के जगह 1 डालो, y के जगह 2 डालो। तो p 3 into 2 plus 8 equal to 0। तो p का वैल्यू 2 हो गया। डिटरमिनेंट का यूज करने का भी जरूरत नहीं है। Find the equation of line intersection of these two line and parallel to this। ये तो लास्ट टाइम डिस्कस ऐसा क्वेश्चन किए थे। Which line passes through these two lines? Find equation of line passing to the point of intersection of these two line। कौन सा लाइन ये दोनों लाइन दोनों के इंटरसेक्शन में पास करता है? They are family of lines। Okay, let equation of line is L1 plus lambda times of L2 equal to 0। That implies x plus 3y minus 1। आपको लाइन फॉर्मेट रखना पड़ेगा, x plus 3y minus 1। ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x minus 2y plus 4 इक्वल टू 0। तो आप x एंड y को आप स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में रखो। x टर्म, y टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज द x टर्म? दो x टर्म है ना, एक 1 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस 3 माइनस 2 y आपका 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन। दिस लाइन पैरेलल टू द 3x plus 4y इक्वल टू 0। कब पता चलेगा?
जब दोनों का स्लोप सेम होगा। तो इसका स्लोप क्या है? -3/4। तो इसका स्लोप भी -3/4 होगा। तो स्लोप इज द -a/b minus of 1 plus lambda upon 3 minus 2 lambda should be -3/4. तो माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 4 plus 4 lambda must be 9 minus 6 lambda, that implies 10 lambda equal to 5। तो lambda का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब lambda का वैल्यू डाल दो इसमें। तो 1 plus 1/2 into x plus 3 minus 2 lambda, 2 lambda मतलब 1 into y is equal to 4 lambda, 4 lambda is the not equal to plus आपका 2 lambda 1, 4 lambda हो जाएगा 2 minus 1 is equal to 0, that implies 3/2x plus 2y plus 1 equal to 0। तो आप 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, then 3x plus 4y plus 2 equal to 0। This is your required line। समझाइए। रेड और नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट। with respect to a line। एक स्ट्रेट लाइन दिया गया तो आपका दोनों पॉइंट सेम साइड में हो सकता है, तो अबव हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। आपका एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे हो सकता है।
both the cases are called same side of the line. This is case opposite side of the line. Okay. और एक होता है on the line. Point on the line already you know. If point lies on the line तो line को satisfy करेगा. Okay. हम दो cases इधर निकालेंगे. If points P x1, y1 and Q x2, y2 lies same side of the line L ax plus by plus c equal to 0, then L1 into L2 greater than 0. If both the points lies above the line or both the points lies below the line, that is called same side of the line. And line given ax plus by plus c equal to 0, then L1 into L2 greater than 0. What is L1? Where L1 is the सीधा फर्स्ट पॉइंट को आप लाइन के ऊपर डाल दो. L1 is the ax1 plus by1 plus c. What is your L2? सेकेंड पॉइंट को लाइन के ऊपर डाल दो. ax2 plus by2 plus c. If point P and Q lies opposite side of the line, मतलब एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, opposite side of the line, L equal 0, then आपको L1 into L2 less than 0. ओके. सेम साइड में रहेगा तो ग्रेटर देन 0, ऑपोजिट साइड में होगा तो लेस देन 0. You can take an example. Find position of points 4, -8 and 3, 1 with respect to a line Px at 2x plus 9y minus 20 equal to 0. Okay. हम जस्ट निकालेंगे L1 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को लाइन के ऊपर डाल दो तो 4 into 2 और 9 into y मतलब 9 into -8 -2 क्लियरली लेस देन 0. मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना जरूरी नहीं, ओनली हैव टू चेक वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दैट्स इट. देन फाइंड L2 मतलब 3, 1 इसमें सेटिस्फाई करेगा तो 2 into 3 9 into 1 -2 clearly greater than 0. So L1 into L2 less than 0 होगा, hence points 4, -8 and 3, 1 lies opposite
साइड ऑफ द लाइन 2x plus 9y minus 20, अच्छा 20 नहीं 2 था ना, -2 इक्वल टू, समझाइए। दोनों पॉइंट को सीधा लाइन के ऊपर यूज करो, इक्वल 0 दिखेगा तो पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होगा तो आपका पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक पॉइंट के ऊपर हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो इसके लिए 2 पॉइंट्स यूज होता है। डन।